Interference of two light waves is our article of discussion today. Now for this interference, which is a mixing up of two light waves, we need to first revise quickly what is a wave, the structure of a wave. I'm going to take my time for this particular article because this includes the techniques and shortcuts not only for interference but also for some questions of wave theory, oscillations, wave motion, stationary waves, because this interference also takes place in sound waves. So the similar concepts goes even there. So wherever wave concept comes, you can always apply these techniques. Even in EMI, electromagnetic induction, you can apply all these techniques, because in electromagnetic induction also we have the AC voltage, AC current, which are basically sine waves. तो आप देख सकते हो ये भी साइन वेव ही है, जो जीरो से स्टार्ट होता है. साइन वेव हमेशा पॉजिटिव साइन वेव रहेगा तो वो क्रेस्ट से स्टार्ट होगा, मतलब अपर पार्ट से, और नेगेटिव साइन वेव रहेगा तो वो लोअर पार्ट से स्टार्ट होगा. So anyways, it is a wave. We are going to discuss the mixing of two waves, which is called as the interference of light, and where the two waves interfere, meet, mix up at a point. That point can be either more in intensity, that is bright, or lesser in intensity, that is dark. Yes, students, light plus light, of course, is equal to more light, and light plus light can also be equal to lesser light, that is close to darkness. This is our concept. Light plus light is equal to brightness, or light plus light is equal to darkness or lesser intensity. How come this takes place? That is understood in this particular article. But इसके लिए आपको wave से शुरू करना पड़ेगा. So what is one wave? When you say one wave, I have marked 5 points here: A, B, C, D, E. A is the origin, B is a positive peak of this wave, और ये जो distance है x axis से b तक का, that height of the wave is called as amplitude of the wave. C is where crust is ending, आधा wave खत्म हो गया है, उसके बाद it is going to negative half, so it is negative peak at d. This distance from axis x axis to d is same as this distance up to b. तो ये और ये same है, खाली ये positive है upper direction में, ये negative है downward direction में. So D is your fourth point and E is your fifth point, where trough ends, second half of the wave ends, and also the entire one wave ends. So this one wave, the sine wave what I have drawn here, is having three parameters to it, and I call them as ATD, angle, time, distance. I repeat, they are called as ATD, angle, time, distance. Angle को दूसरा नाम हम लोग यहाँ पे देंगे phase. Angle is phase, phase is angle. So for a wave, one wave, mind you, one wave is having a phase or angle of 2 pi. तो एक wave हमेशा 2 pi इतना phase carry करती है. या I can say whenever you say 2 pi, it is a completion of one wave. So 4 pi का phase would mean 2 waves. 6 pi का phase means 3 waves, and so on. So each wave corresponds to 2 pi radian, that is angle of 2 pi. So these angles are sub parts of this total angle 2 pi. 2 pi को मैंने 4 हिस्सों में divide कर दिया. कैसे देखो, ये तो origin है, okay? So this entire wave is first of all divided into 4 quarters. 4 equal parts करेंगे. A to B, B to C, C to D, and then D to E. तो A to B जब भी गया wave, तभी का एंगल फेज पाई बाई 2 है. फिर B to C ये और पाई बाई 2 जुड़ गया, मतलब A से लेकर C तक ये पूरा जो क्रस्ट हुआ, आधा वेव, हाफ वेव, इसीलिए इस 2 पाई एंगल का भी वो हाफ हो गया. एक्चुअली ये पाई बाई 2 क्यों हुआ? क्योंकि ये जो वेव है A to B, ये उस पूरे वेव का 1/4 है. तो आप ध्यान से देखो तो ये पाई बाई 2 क्या है, ये इस एंगल का 1/4 है, 2 पाई बाई 4. So 2 pi by 4 is pi by 2. So this is 2 pi by 2, half of entire wave. This is where it is 3/4 of wave completed. तो 2 pi का 3/4 ये है, that is 3 pi by 2. So एक wave के 4 equal parts करेंगे. This is 1/4, this is half, this is 3/4, and this is one complete wave.
So as I am saying 1/4, half, 3/4 of wave, I also mean 1/4 of 2 pi, half of 2 pi, 3/4 of 2 pi एंगल। तो जैसे जैसे वेव कंप्लीट होते जा रहा है उसी प्रोपोर्शन में मैं एंगल भी ले रहा हूँ। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट कम्स। अभी इस एंगल का करस्पॉन्डिंग टाइम, एक वेव को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है स्टूडेंट्स, उसको क्या बोलते हैं? पीरियड, टाइम पीरियड। सो 2 पाई विल करस्पॉन्ड टू टाइम पीरियड ऑफ टी। तो एक वेव 0 से 2 पाई, उसका टाइम हो गया 0 से कैपिटल टी। तो अगर यहाँ पे 1/4 वेव कंप्लीट हो रहा है तो इस एंगल का करस्पॉन्डिंग टाइम रहेगा t/4। 1/4 वेव 1/4 ऑफ द टाइम, हाफ वेव हाफ ऑफ द टाइम, 3/4 वेव सो 3/4 ऑफ द टाइम। सो एंगल्स के करस्पॉन्डिंग टाइम हम लोगों ने निकाल लिए। अभी डिस्टेंसेस, वन वेव ए से लेकर ई तक, यहाँ पे ये पूरा वेव हुआ है तो ये ए ई, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन वेव? इट इज लैम्डा। 1/4 वेव कंप्लीट हुआ तो इसका भी 1/4 करो, हाफ वेव तो इसका भी हाफ, 3/4 वेव तो इसका भी 3/4। टाइम एंड डिस्टेंस, इनका जो नोटेशंस है, ये जैसे ये टी, ये लैम्ब, फिर ये 1/4 हाफ हाफ, 3/4 3/4। एक्चुअली ये भी वैसा ही है, खाली आपको 2 पाई के टर्म्स में लिखा आपने तो आपको इजीली समझेगा। तो इफ दिस इज 2 पाई, दिस इज 2 पाई बाय 4, दिस इज 2 पाई बाय 2 एंड दिस इज 2 पाई इंटू 3/4। सो 2 पाई का 1/4 हाफ एंड 3/4, जैसे ये टी का 1/4 हाफ एंड 3/4 है, ये लैम्ब का 1/4 हाफ एंड 3/4 है। तो इसे 4 पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड करना है और याद रखना है कि दिस इज एंगल, दिस इज टाइम एंड दिस इज डिस्टेंस ATD। मैंने एंगल से क्यों शुरू किया? क्योंकि एंगल मींस फेज, फेज मींस एंगल। ये क्यों लगेगा? ये तो एक वेव का बात हो गया। अगर ऐसे दो वेव्स अलग अलग एम्पलीट्यूड्स के, यू कैन सी दिस इज हायर एम्पलीट्यूड, लेट अस कॉल इट एज A1 एंड दिस इज लोअर एम्पलीट्यूड A2। अगर ऐसे दो वेव्स एक साथ एक पॉइंट पे कोइंसाइड हो रहे हैं, इंटरफेयर हो रहे हैं, लेकिन किस तरीके से? इस तरीके से कोइंसाइड हो रहे हैं, मतलब इसका क्रस्ट और इसका क्रस्ट, क्रस्ट मीट क्रस्ट, ऐसा अगर हो रहा है। सी देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के साथ आएगा, या फिर ट्रफ ट्रफ के साथ आएगा। अगर क्रस्ट क्रस्ट के साथ आ गया तो ट्रफ ट्रफ के साथ आ गया, ये तो आई मीन इट फॉलोज। तो ये दोनों एक ही पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी, एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ कोइंसाइड होगा, उसका मतलब ये भी है कि एक का ट्रफ दूसरे के क्रस्ट के साथ कोइंसाइड होगा। सो ये एक पॉसिबिलिटी हुआ, ये दूसरा पॉसिबिलिटी हुआ। द पॉसिबिलिटीज आर गैलोर, ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, बट द स्टैंडर्ड वंस बीइंग दीज टू, crust with crust or trough with trough. Here the waves are said to be meeting in same phase. क्यों same phase बोला स्टूडेंट्स? phase मतलब एंगल, एंगल मतलब phase। तो देखिए इसका इन दोनों का इस तरीके से जो मीटिंग हो रहा है, तभी पहले वेव का फेज क्या है? पाई। दूसरे वेव का फेज भी पाई ही है। तो मतलब इसका फर्स्ट हाफ, इसका फर्स्ट हाफ एक साथ, सेकेंड हाफ एक साथ, क्रस्ट विद क्रस्ट, ट्रफ विद ट्रफ, फेज पाई। दोनों का फेज पाई है यहाँ तक, या यहाँ तक दोनों का फेज 2 पाई है, मतलब दोनों का फेज सेम जा रहा है। आप उसके पीक पॉइंट्स को भी कंसीडर करो, जब इसका पीक आया तभी इसका भी पीक है। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो दोनों का फेज कितना है? π/2 ही है। सो दोनों का फेज 0, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई एक साथ जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं कि दे आर इन सेम फेज। सो दे आर इन सेम फेज। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पाई का फेज डिफरेंस है। कैसे? देखो इसका क्रस्ट, ओके, लेकिन इसका दूसरे का क्रस्ट तो आगे स्टार्ट हो रहा है ना। देखो फेज सिर्फ एंगल से नहीं होगा, आपको उसका स्टेट ऑफ वाइब्रेशन देखना पड़ेगा। मतलब व्हेनेवर यू आर कंपेयरिंग द टू फेजेस, लुक एट और कंपेयर द टू सिमिलर पॉइंट्स। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया? दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कंपेयर किया, दोनों का पीक कंपेयर किया, क्रस्ट का एंडिंग या फिर क्रस्ट का पीक, या फिर सॉरी ट्रफ का पीक या फिर ट्रफ का एंडिंग पॉइंट कंपेयर किया। तो आप लाइक पॉइंट्स को कंपेयर करके फेज डिसाइड कर सकते हो। जैसे अभी इस पॉइंट पे अगर आप देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन, यहाँ पे फर्स्ट वेव का क्रस्ट स्टार्ट हो रहा है, लेकिन क्या इसी पॉइंट पे सेकेंड वेव का क्रस्ट स्टार्ट हो रहा है? जी नहीं। अगर क्रस्ट स्टार्ट होता तो इस तरीके से आता, तो वहां पे हम लोग सेम फेज बोलते हैं, बट ये सेम फेज में नहीं है। तो आपको देखना क्या है कि सेकेंड वेव का क्रस्ट कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो इसका क्रस्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ ओरिजिन पे 0 एंगल पे,
दूसरे का क्रस्ट इधर स्टार्ट हुआ जब भी पहले का पाई ऑलरेडी अचीव हो चुका है, पाई रेडियन, तो दूसरे वेव का क्रस्ट पाई इस एंगल पे स्टार्ट हो रहा है। सो क्रस्ट, स्टार्टिंग ऑफ क्रस्ट फर्स्ट वेव, स्टार्टिंग ऑफ क्रस्ट सेकेंड वेव, इसका एंगल 0, इसका एंगल पाई, तो दोनों के एंगल अलग अलग हो गए, मतलब दोनों के एंगल में फेज में डिफरेंस है कितने का, पाई का। सो दिस इज वेयर द फेज डिफरेंस इज पाई। सो ये अपना आर्टिकल का टाइटल में भी आपको बता दूं कि वी आर डिस्कसिंग फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, क्योंकि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन, ये पूरा का पूरा इन दो के ऊपर डिपेंड है, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस एंगल का डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस डिस्टेंस का डिफरेंस होता है। समटाइम्स दे आल्सो गिव यू टाइम डिफरेंस, जिसको मैं डेल्टा टी बोलूंगा। फेज डिफरेंस को हम लोग इसका सिंबल फाई हम लोग यूज करते हैं, पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स यूज करते हैं, टाइम डिफरेंस को डेल्टा टी यूज करेंगे, डेल्टा फॉर डिफरेंस। तो ये फेज डिफरेंस फाई, ये पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, टाइम डिफरेंस डेल्टा टी। इसके ये समझने के लिए आपको ये तीनों का करस्पॉन्डेंस समझ में आना चाहिए कि कौन से एंगल पे कितना टाइम कितना डिस्टेंस, एंगल टाइम डिस्टेंस, एंगल टाइम डिस्टेंस करस्पॉन्डिंगली आपको देखना है। अभी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे दूंगा आपको, यहाँ पे इन दोनों वेव्स का फेज देखो स्टूडेंट्स, इंटरफेरेंस मतलब मिक्सिंग अप ऑफ टू वेव्स है, दो वेव्स आ गया मतलब उनमें फर्क तो रहेगा ही, अनलेस यू हैव, अभी देखो इनका एम्पलीट्यूड्स अलग अलग है, एम्पलीट्यूड सेम भी हो सकता है, फेज भी सेम हो सकता है, लेकिन ये स्पेशल केस हो गया, हमेशा नहीं रहेगा। तो जब भी फेज सेम है, एम्पलीट्यूड्स अलग है, तो फेज का फर्क कितना हुआ, कोई डिफरेंस नहीं है फेज में, फेज डिफरेंस इज 0। लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा, कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो, एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ आ गया, आई एक्सप्लेन यू कि इन दोनों वेव्स में फेज का फर्क है, कितना फर्क है, पाई, फेज डिफरेंस इज पाई। तो जब भी फेज डिफरेंस माने एंगल का डिफरेंस पाई है, एंगल पाई, तभी डिस्टेंस का डिफरेंस कितना रहेगा, λ/2, टाइम का डिफरेंस कितना रहेगा, t/2, और जब भी फेज डिफरेंस 0 है, एंगल का डिफरेंस 0, तो यहाँ पे टाइम डिफरेंस भी 0 और वेवलेंथ का डिफरेंस भी, मतलब डिस्टेंस का डिफरेंस भी 0 आएगा। सो वंस यू नो एनी वन ऑफ दीज थ्री, यू कैन गेट द अदर टू। अगर आपको एंगल का पता है तो आप इन दोनों का करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाल सकते हैं, अगर आपको डिस्टेंस का पता है इन टर्म्स ऑफ लैम्ब, तो आप इन दोनों का निकाल सकते हो। सो ये शॉर्टर वेज हो गया, शॉर्टकट्स हो गया, बट इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि देयर विल बी ऑलवेज टू वेव्स मिनिमम, जिनके बीच में फर्क रहेगा, फेज का, टाइम का और डिस्टेंस का भी, मतलब एंगल टाइम डिस्टेंस 80 तीनों का फर्क रहेगा। जनरली ये दो वेव जब भी मिक्स हुआ तो उस पॉइंट का, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया ना, इंटेंसिटी या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। लेकिन इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, साउंड हो या लाइट हो, दोनों के केसेस में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इसीलिए तो मैं एम्पलीट्यूड का बात कर रहा हूं जब से। लेकिन एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल वेव का A1 A2 है, रिजल्टेंट वेव का क्या आएगा ये हम लोग देखेंगे। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए आपको पहले उसका फेज पता होना चाहिए, फेज डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो ये A1 A2 दोनों सेम फेज में मिला, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। सो यहाँ पे आपका R आएगा स्टूडेंट्स A1 प्लस A2, और इस केस में ये आपका A1 है बड़ा, ये A2 है छोटा, तो A1 माइनस A2 करना पड़ेगा, क्योंकि एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव मिक्स हो रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट मिलके बहुत छोटा वेव तैयार होगा, A1 माइनस A2, एंड दैट इज योर रिजल्टेंट हियर। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि ये A1 प्लस A2 ही क्यों किया और ये A1 माइनस A2 ही क्यों किया, और इसके जैसे कितने सारे पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पे A1 प्लस A2 करने का मेन कारण है कि इन दोनों वेव्स में फेज में कितना फर्क है, कुछ भी नहीं, वो एक साथ जा रहे हैं। तो इसलिए इसके केस में फाई इज 0 डिग्री, लेकिन इस केस में फाई इज पाई रेडियन, पाई माने 180 डिग्री, डिग्री में 180 होता है। तो ये फाई का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ और इस फॉर्मूला से सॉल्व करता हूँ, तो मुझे आर का वैल्यू ये मिलेगा। चेक करो, फाई 0 है तो cos 0 1 हो गया, तो ये तीसरा टर्म 2A1 A2, इसमें 3 टर्म्स है ना, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos फाई, तो ये A1 A2 cos फाई 2A1 A2 cos फाई, ये टर्म आपका हो जाएगा सिर्फ 2A1 A2 इस केस में, cos फाई इज 1। तो रूट में क्या बचा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, विच इज A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर, अंडर रूट है
रूट निकाल दिया तो a1 प्लस a2 हो गया. So when two waves meet in same phase, the resultant amplitude is sum of the individual amplitudes. अच्छा, अगर ये दोनों सेम रहेगा, a1 a2 सेम है, a and a, तो इधर हो जाएगा 2a. अगर a1 और a2 सेम है तो. अच्छा, when two waves meet in opposite phase और out of phase, different word मत यूज करो स्टूडेंट्स, क्योंकि different word का मीनिंग बहुत डिफरेंट हो जाता है. यहाँ पे कैसा ऑपोजिट या आउट ऑफ फेज, तो उसमें एंगल पक्का पाई रहेगा. लेकिन डिफरेंट फेज अगर आप बोलते हो तो एंगल कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 4, पाई बाय 2, एनीथिंग. सो नेवर से डिफरेंट, से ऑपोजिट इस केस में. सो व्हेन टू वेव्स मीट इन ऑपोजिट फेज और आउट ऑफ फेज, तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी डिफरेंस ऑफ द टू वेव्स, टू एम्पलीट्यूड्स. तो कैसे मिला? फाई इज पाई, cos पाई 180, 180 मतलब cos 180 इज -1, इसलिए बीच का ये तीसरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा. मतलब क्या बचेगा? सिर्फ आपका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2 a1 a2. सो दैट इज a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर हो गया. सो a1 माइनस a2 रूट निकालने के बाद. अच्छा, अगर a1 a2 सेम है तो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा 0. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 मतलब वो पॉइंट आपका हो गया. देखो, एम्पलीट्यूड 0 मतलब वो इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स में. ये R क्या है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि उसमें से मुझे रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलने वाला है. एम्पलीट्यूड इज एन इंडिकेटर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटेंसिटी. अगर ज्यादा एम्पलीट्यूड है तो इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा. इसीलिए इस केस में आपको ब्राइट पॉइंट मिलता है. लाइट प्लस लाइट इज मोर लाइट. दैट्स व्हाट आई सेड. वी हैव टर्म्ड इट एज ब्राइट पॉइंट, ब्राइट बैंड, ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि वो पैच होता है, या फिर हम लोग उसको मैक्सिमा ऐसा बोलते हैं. ये चारों का मतलब एक ही है. ओके, सो लाइट प्लस लाइट इन सेम फेज इज मोर लाइट, कॉल्ड एज ब्राइट बैंड, ब्राइट पॉइंट, ब्राइट फ्रिंज, मैक्सिमा. चारों का मतलब एक ही. अगर ऐसे मिल रहा है तो और एम्पलीट्यूड सेम है, a1 a2 सेम है, तो रिजल्टेंट हो जाएगा a1 माइनस a2 दैट इज 0, a माइनस a 0. मतलब वो वहां पे आपको एक ऐसा डार्क पैच मिलेगा पूरा. लाइट प्लस लाइट इज इक्वल टू नो लाइट, 0 लाइट. अगर सेम एम्पलीट्यूड है तो ऑपोजिट फेज है तो सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0, सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगा. पॉइंट विल बी डार्क. आपको जो इंटरफेरेंस पैटर्न आपने सीखा है या आपको सीखना है, उसमें आपको ऑल्टरनेटली ब्राइट और डार्क ऐसे बैंड्स आपने सीखे हैं. ब्राइट डार्क ऐसा एक पैटर्न हम लोग को मिलता है कंटिन्यूअसली, रेगुलरली. उस पैटर्न को हम लोगों ने नाम दिया है SIP, स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न. सो व्हाट इज स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न? इट इज अ पैटर्न obtained on a screen which comprises of alternate bright and dark bands arranged, of course alternately but regularly as well. मतलब दो बैंड्स के बीच का डिस्टेंस वहां पे सेम रहेगा. ऐसा ऑल्टरनेट एंड रेगुलर अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं SIP, स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न. तो वो SIP का हर एक ब्राइट बैंड इस तरीके से फॉर्म होगा, हर एक डार्क बैंड इस तरीके से फॉर्म होगा. लेकिन उसमें हम लोगों ने एम्पलीट्यूड सेम कंसीडर किया था. SIP तो तभी आएगा जब A1 और A2 सेम रहेगा. नहीं तो वहां पे A1 A2 अलग अलग होके भी एक पैटर्न मिल सकता है, बट देन इट वोंट बी SIP, इट वुड बी USIP, अनस्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न. अच्छा, अभी ये फाई आपको जैसे मैंने बोला यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई है, ऐसे अलग वैल्यूज भी हो सकते हैं. जैसे कि ये, अभी इसको ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपको EMI में लगेगा. ये आपको वेव मोशन, स्टेशनरी वेव्स, हर जगह पे, यहाँ पे भी वेव आया, आपको ये डिफरेंस पूछ सकते हैं. नाउ आफ्टर दिस मच एक्सप्लेनेशन, जहाँ पे मैंने फेज आपको एक्सप्लेन किया, आपको यहाँ पे फेज डिफरेंस पहचानना है स्टूडेंट्स. तो एक वेव जो ब्लू में ड्रॉ किया है और एक जो ब्लैक में ड्रॉ किया है, इन दोनों का फेज का डिफरेंस मुझे चाहिए. देखिए कैसे कंपेयर करते हैं फेज डिफरेंस. स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का कंपेयर करो, स्टार्टिंग ऑफ क्रस्ट. अच्छा, जरूरी है नहीं कि आप स्टार्टिंग ऑफ क्रस्ट को ही कंपेयर करो, आप स्टार्टिंग ऑफ ट्रफ को कंपेयर करो, एंडिंग ऑफ क्रस्ट को कंपेयर करो, एंडिंग ऑफ ट्रफ को कंपेयर करो, या फिर दोनों का पीक कंपेयर करो. जैसे इसका पीक ये है, इसका पीक ये है. इन दोनों के एंगल्स देखो, उनका डिफरेंस निकालो, वो भी आपका फेज डिफरेंस सेम ही मिलेगा जो मुझे यहाँ पे मिलेगा. नाउ हियर मैं इजीएस्ट वे आपको बता रहा हूँ. दोनों के क्रस्ट का स्टार्टिंग देखो कहाँ पे है, सॉरी पहले के क्रस्ट का स्टार्टिंग कहाँ पे है, ओरिजिन पे. दूसरे का क्रस्ट 90 डिग्री पे स्टार्ट हो रहा है. मतलब जब भी पहला अपने पीक पे पहुंच गया, तभी दूसरे का क्रस्ट वहां से स्टार्ट हो रहा है. तो इसका फेज क्रस्ट का 0 है, इसका पाई बाय 2 है. तो इन दोनों वेव्स में फेज का फर्क कितना हुआ स्टूडेंट्स?
पाई बाय 2 और रेडियन ऑफ कोर्स। अच्छा अभी इन दोनों में देखिए, इन दोनों में भी वही है। आप देखो इसका क्रेस्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है 0 पे, ओके, लेकिन इस दूसरे का जो है, दूसरे का क्रेस्ट कहां पे स्टार्ट होगा? अभी आप आगे जाके क्रेस्ट को कंपेयर नहीं कर सकते, तो आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी इसका क्रेस्ट स्टार्ट हो रहा है तभी इस दूसरे का क्रेस्ट ऑलरेडी अपने पीक पे है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसको थोड़ा पीछे एक्सटेंड करो ऐसे। तो अभी इसका क्रेस्ट, अच्छा पहला क्रेस्ट कंपेयर करना है, कोई भी क्रेस्ट मत कंपेयर करो। सो क्रेस्ट, फर्स्ट क्रेस्ट विद फर्स्ट क्रेस्ट, ये राइट रहेगा कंपैरिजन, ओके। सो इसका पहला क्रेस्ट, इसका पहला क्रेस्ट। अच्छा अभी इसका ब्लू का पहला क्रेस्ट यहाँ पे है, तो ब्लैक जो डॉटेड है उसका पहला क्रेस्ट यहाँ पे आ रहा है। ये भले -π/2 है, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड कंसीडर करूंगा तो ये π/2 हो जाएगा। सो नाउ इफ यू कंपेयर, एक का फेज है 0, एक का फेज है -π/2, और π/2 दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस है π/2 का। तो इस तरीके से अगर दोनों में एक साथ स्टार्ट नहीं हो रहे हैं तो उनमें फेज का डिफरेंस तय है, फिक्स है। कैसे फाइंड करना है? लाइक पॉइंट्स को कंपेयर करके। जनरली आप स्टार्टिंग ऑफ क्रेस्ट को कंपेयर करो, या फिर EMI में व्हाट आई रिकमेंड इज आपको ना दोनों का पीक कंपेयर करना होता है। इवन दैट इज एन इजियर वे स्टूडेंट्स। इसका क्रेस्ट सॉरी इसका पीक यहाँ पे है, इसका पीक यहाँ पे है, तो आप देख सकते हो इसके पीक का एंगल कितना है π/2, इसके पीक का एंगल कितना है π/2 एंड π कितने का फर्क है π/2। सेम आपको आंसर वही मिलेगा, आंसर आपको वही मिलेगा, नतीजा वही है, तरीका अलग है। अभी यहाँ पे अगर आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अगर लग रहा है, ठीक है, आप पीक वाले पॉइंट को कंपेयर करो, तो ये ड्रॉ नहीं करना है फिर पीछे, ओके। आप देखो इस ब्लू वाले का पीक किधर है? 90 डिग्री पे है। इस ब्लैक वाले का पीक 0 पे है। देखो ये जब 0 है एंगल, तभी ये पीक पे है ऑलरेडी। तो ब्लैक वाले का पीक 0 डिग्री पे, ब्लू वाले का पीक 90 डिग्री पे। सो दोनों के पीक के एंगल्स का डिफरेंस 90 डिग्री सेम मिलेगा आपको। तो यू हैव टू डिसाइड which 2 points to compare. I recommend peak points to be compared, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी में फेज निकालते समय जनरली उसका कंपैरिजन आता है। सो वहाँ पे वो आपको इजी हो जाएगा, आपको अलग नहीं लगेगा फिर। सो wherever wave comes, these are the same fundamentals of angle, time and distance. Angle means phase, phase means angle, phase difference निकाला। ये जो भी phi आपका यहाँ पे मिलेगा इस वेव के लिए और इस वेव के लिए, दोनों के लिए phi is π/2 only। ये phi यहाँ पे रख के आपको इस केस में या इस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल सकता है। अभी अगर देखो phi 90 वाला एक स्पेशल केस है। phi अगर 90 है तो cos 90 कितना हो गया? 0। तो r कितना हो जाएगा? √(a1² + a2²), क्योंकि ये तीसरा टर्म तो 0 हो जाएगा। सो व्हेनेवर फेज डिफरेंस इज 90 डिग्री, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय सम ऑफ स्क्वायर्स अंडर रूट, मतलब पाइथागोरस। इसीलिए मैंने आपको एक चीज और स्ट्रांगली बोला है कि आप पाइथागोरस के जो ट्रायोज है 3, 4, 5, 6, 8, 10 ये अच्छी तरीके से मेमोराइज करके रखो, उसका प्रैक्टिस करो, ताकि ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस है स्टूडेंट्स, आपको ऑसिलेशन में लगेगा ये v = ω√(a² - x²), वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन SHM, वहाँ पे भी स्क्वायर्स का डिफरेंस है, यहाँ पे स्क्वायर्स का एडिशन है। आपका इम्पिडेंस फाइंड करते समय आपको स्क्वायर्स का एडिशन है। सो वेयरएवर अंडर रूट यू हैव स्क्वायर्स का डिफरेंस और एडिशन, आपको पाइथागोरस काम आएगा। सो पाइथागोरस के ट्रायोज एक जगह पे लिख के रखो, जितने आपको पता है, जितने आपको नए मिल रहे हैं उनका भी लिस्ट बना के रखो, एंड रिवाइज देम ऑन अ डेली बेसिस, वो अपने आप छप जाएंगे अपने दिमाग में। सो उससे आपको 90 डिग्री का एंगल देखा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पाइथागोरस से निकाल लेगा, सिंपल इज दैट, ओके। एंड फाइनली आई जस्ट कंपेयर दिस ATD। देखो ये जो मैंने यहाँ पे करस्पॉन्डेंस बताया है, ये तो मैंने इतने एंगल के लिए इतना टाइम और इतना पाथ ये है, लेकिन अगर इतना एंगल का डिफरेंस है, माने फेज डिफरेंस है, तो इतना टाइम का डिफरेंस रहेगा और इतना फेज पाथ का डिफरेंस रहेगा। ये भी शुरू में बोला था, अभी उसी को हम लोग देखेंगे। सी फाई मीन्स व्हाट? फाई मीन्स फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस अगर π/2 है, फेज डिफरेंस कितना है? π/2। तो π/2, देखो बैच मैं और एक चीज आपको थोड़ा रिकमेंड करूंगा, ये सब जो है ना फाई, इसको ना आप 2π के टर्म्स में लिखो तो और सिंपल हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर देने का। सो 2π/4, 2π/2, 2π/12 एंड 2π/6। मैंने हर एक को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये 2π ऊपर आना चाहिए, क्योंकि 2π करस्पॉन्ड्स टू t, कैपिटल T फॉर टाइम,
2π corresponds to lam for distance. तो जब भी आपको डिस्टेंस का डिफरेंस चाहिए, पाथ का डिफरेंस, तो आप इस 2π को सिर्फ लैम से रिप्लेस कर दो, 2π को लैम्डा से रिप्लेस करो, आपको पाथ डिफरेंस मिलेगा। जो आखिर में लिखा है डेल्टा एक्स क्या है? पाथ डिफरेंस। तो इसलिए मैंने क्या बोला, इन सारे एंगल्स को 2π के टर्म्स में लिखो, फिर 2π को रिप्लेस करो लैम से। तो इधर क्या आएगा? लैम बाय 4, इधर क्या आएगा? लैम बाय 2, मतलब पाई एंगल का डिस्टेंस इज लैम बाय 2। यहाँ पे क्या आएगा? 2π by 12, so it is lam by 12, this is lam by 6 and so on. So this is phase difference, this is path difference. Vice versa is also true. अगर आपको path difference दिया है, lam के टर्म्स में ही लाना है path difference हमेशा, तो उसमें से आप phase difference निकाल सकते हो lam की जगह पे 2π रख के। और इन दोनों में से कोई भी एक दिया हुआ है तो टाइम डिफरेंस कैसे निकालोगे? इन सब में 2π की जगह पे कैपिटल T रखो, whether t/4, t/2, t/12, t/6। वही वैल्यूज आपको लैम की जगह पे लैम को टी से रिप्लेस करो तो आपको मिलेगा। सो बैच एंगल टाइम डिस्टेंस का ये जो करस्पॉन्डेंस मैंने यहाँ पे सिखाया उसी को यहाँ पे अप्लाई किया है स्टूडेंट्स। सो फॉर एनी पाथ डिफरेंस यू कैन फाइंड फेज एंड टाइम डिफरेंस, फॉर एनी फेज डिफरेंस यू कैन फाइंड टाइम एंड पाथ डिफरेंस, फॉर एनी टाइम डिफरेंस यू कैन फाइंड फेज एंड पाथ डिफरेंस। तीन में से कोई भी एक दिया है, बाकी के दो आप फाइंड कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई टुक माई टाइम टू इंस्टील दिस इन योर ब्रेन बिकॉज ये 6 चैप्टर्स में लगने वाला है। सो प्लीज 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 नोट डाउन दिस वेल नाइसली, स्कीमेटिक डायग्राम्स प्रॉपरली ड्रॉ करो अपने बुक में, इनके रिकॉर्ड्स बनाओ, क्योंकि इसके बाद का जो सेशन मैं आपको देने वाला हूँ उसमें हम लोग डायरेक्टली इंटरफेरेंस के मतलब डिटेल कंसेप्ट्स और फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं। वही एक्सटेंड होकर आपको डायफ्रैक्शन में यूज करना है विद सम स्मॉल रिप्लेसमेंट्स। आपको डायफ्रैक्शन के कंसेप्ट्स और डायफ्रैक्शन के फॉर्मूला भी मिलने वाले हैं। सो दिस इज टू बी स्टडीड एंड रिकॉर्डेड वेरी वेल।